Question is it possible to uh, describe to design a 6-phase die so that probability of success is 1 by 2? The question is it possible to design a die so that the probability of 6 is 1 by 2 while the probability of getting any other number is 1 by 2? And other number, probability of other number is 1 by, this is the question. दिस इज द, कह रहे हैं कि क्या पॉसिबल है कोई ऐसा डाइस हम बना सके जिसमें 6 की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 हो और बाकी अदर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 by, ठीक है। चलो देखो, अगर सपोज दैट हम कोई डाइस बना रहे हैं जिसमें किसी एक की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 हो तो बाकी जो 5 नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 by 6 होगी, ठीक है। यही तो कह रहे हैं ना क्वेश्चन। देखो, अगर मान लो अदर 5 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 हो तो 1 by 6 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 by 6 है। अब कह रहा है 6 नंबर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 by 2 है तो कैन यू गेट इक्वल टू 1 बिकॉज यू नो द सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। तो इफ यू विल सम दिस दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं होगा, विच इज नॉट इक्वल टू, so the answer is wrong, ठीक है। Hence it is not possible to design a dice whose one face has a probability 1 by 2, किसी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है और हम डिजाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि टोटल सम 1 by 1 होना चाहिए और 1 नहीं है इसलिए ये पॉसिबल नहीं। तो वी कैन नॉट it can not be possible, ठीक है। एंड रीजन is what? Is the sum, the total sum is 1, that is not getting here, so the question is not true. Is it clear? Okay. Now the second question, a die is thrown once, what is the probability? देखो, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है a die is thrown, a die is thrown, what is the probability of getting a prime number? If you are throwing a die, then this is the second question. Then the sample numbers are 1 2 3 4 5, these sample points, in which what are the prime numbers? The prime numbers are 2 3 and 5, these are prime, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कह रहा है ना a number should be prime, then what is the answer? What is the probability of getting a prime number? One by 2, yes, क्योंकि there are 3 numbers, so 3 by 6, total favorable outcomes 3 and total possible outcome 6 है। तो probability of prime number is G by
6 that is equal to 1 by is the right. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इसी का सेकेंड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 2/3। क्यों? क्योंकि देखो 3 भी इंक्लूड होगा तो 3, 4, 5, 6 ग्रेटर और इक्वल पर है, टोटल 4/6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, the answer is 2/3. This is the probability. Now the next part में कह रहा है थर्ड पार्ट, a number less than or equal to 1, probability less than or equal to 1, tell me, less than or equal to 1, less than or equal to 1, what is the probability? 1/3, क्योंकि एक नंबर तो आएगा 1, तो 1/3 the fourth part is a number greater than 6, probability that the number is greater than 0, because there is no number, so the probability is 0. The next is part 5, a number less than 6, number less than 6, what is the probability that getting a number? Yes, the right answer is 5/, ठीक है। तो आई होप कि आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल सेम कंसेप्ट में भी आपको दे चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आप करेंगे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। सीधे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a letter is chosen at random from the word assassination। देखना थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASSANATIO, ठीक है, दिस इज द वर्ड। कह रहा है a letter is chosen at random from the word assassination, what is the probability that it is vowel? ठीक है, what is the probability that it is vowel? Now if you will count the total number, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो होंगे, लेटर्स कितने हैं? 30। इन विच हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? देखो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू numbers of vowels equal to 6. It means number of consonants is how much? 7, because there are total 13 and if 6 are vowels then 7 are consonants. Now the question is, what is the probability that it is a vowel? So there are total 6 vowels. Out of 6 vowels any one can be chosen, so total favorable outcomes is 6 out of how much? 30, ठीक है। so the probability of vowel is what? 6/। ऐसे ही in the second part, what is the probability that the letter is chosen is consonant? so the answer is, what is answer? 7/13. So this is the answer, 7/13 is the answer, ठीक है। Now students, the remaining questions are same। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टारगेटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको इधर लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18, देखो, इन क्वेश्चन नंबर 18 it is given if the odds in favor of an event are 2:1. Odds in favor of an event are 2:1. What is the probability that it happens? तो आपको सिंपल सा पता है कि अगर हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होता है, ऑड्स इन फेवर में तो सम करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑफ इवेंट इज व्हाट, 2/2 + 1, दैट इज 2/, और यही ऑड्स अगेंस्ट में क्या होता है, माइनस कर देते हैं, कितना फर्क, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 आफ्टर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अ कमिटी ऑफ पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have no man? ठीक है, देखो, there are number of men is how much, 2, and number of women is ये भी 2, तो ठीक है, टोटल कितने हैं, 4। अब 4 में से आपको इसमें से कह रहा है कि कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, 2 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो पहले में कह रहा है देयर इज नो मैन, तो अगर मैन नहीं है तो दोनों में से क्या होंगे, कह रहे कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज फ्रॉम 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have? ठीक है, तो अगर टोटल 4 है, 4 में से आपको 2 को सिलेक्ट करना है, तो ऐसे टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल आपका 6 होगा। 4 में से सॉरी, टोटल 4 है और 4 में से 2 को आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा, a committee of 2 persons selected from 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have no man, 1 man, ठीक है। तो अगर नो मैन की बात कर रहा है तो 2 में से एक भी नहीं, ये सिलेक्शन है, देखो 2 में से एक भी नहीं, 2 मेन में से कोई भी एक मेन सिलेक्ट नहीं होगा, तो 2 ही 0, ठीक है। एंड 2 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक, और फिर टोटल डिवाइड कर दिया कितना, 4/2। भाई टोटल 4 में से 2 को ही सिलेक्ट करना, तो हमने कैसे सिलेक्ट किया, 2 मेन में से कोई भी मेन नहीं और 2 वुमेन में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर लिया और टोटल 4 में से 2 को सिलेक्ट। तो अगर तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें, दैट इज फैक्टोरियल 2/0 into फैक्टोरियल 2, कैंसिल, दैट इज 1, एंड व्हाट इज 2c2 फैक्टोरियल 2/फैक्टोरियल into फैक्टोरियल 0, अगेन 1, ठीक है। ये नीचे की तो वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे इसकी अगर बात करें तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 2, ये होगा ना, फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 into 3 into फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 into फैक्टोरियल, यहाँ से ये कट जाएगा, एक कटेगा, इसको इधर लिख देते हैं, देखो ये आ जाएगा 1/4 into 3 into फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 into, यहाँ से ये कट गया, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो द आंसर इज 1/।
1/6. So if there is no man, then the probability is 1/6. अच्छा, सेकेंड केस में कह रहा है कि out of these four members in which there are 2 men and 2 women, no man should be there. So 1 man should be there. देखो सेकेंड में कह रहा है, सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन। तो अगर 1 मैन है, डेफिनेटली जो है एक इसमें से सेलेक्ट करेंगे और एक इसमें से, ठीक है, 2 को सेलेक्ट करना है। तो अगर एक इसमें से सेलेक्ट कर लिया, देखो 1 मैन 1 फ्रॉम दिस ग्रुप एंड, और एक वुमेन को सेलेक्ट किया है, एंड 2C1 डिवाइडेड बाई 4C, ठीक है। अब 4C2 को अभी आपने कैलकुलेशन किया है, देखो 4C2 को अभी आपने कैलकुलेशन किया है, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड 4 माइनस 2 अगेन 2, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 4C2 को अभी आपने 6 कंसीडर किया था, ये तो टोटल 6 है, ठीक है, ये तो 6 हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2C1? 2C1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2C1? बोलो 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल 0, ठीक है, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये है ना, 2 इज द आंसर। तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 2 इज 2 3 जा 6, 2/3 द। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कह रहा है 2 मेल, थर्ड पार्ट में कह रहा है देयर शुड बी 2 मेल। इफ देयर शुड बी 2 मेन, देखो थर्ड पार्ट में, इफ देयर शुड बी 2 मेन, 2 मेन, तो अगर 2 मेन है तो वुमेन नहीं है दोनों में, तो 2 मेन में से 2 को सेलेक्ट कर लिया और 2 वुमेन में से 0, कोई भी सिलेक्शन नहीं किया, टोटल कितने में से 4 में से, तो डिवाइड कर दिया भाई, 2 मेन में से 2 को सेलेक्ट कर लिया और 2 वुमेन में से किसी को सेलेक्ट नहीं किया, टोटल सिलेक्शन कितना था, 4 में से 2 डिवाइड कर दिया, टोटल से डिवाइड करते हैं और फेवरेबल न्यूमरेटर होता है। नाउ द वैल्यू ऑफ 2C2 इज हाउ मच? 2C2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 0, दैट इज 1, एंड 2C0 ऑल्सो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू 1 होगा और इसका 6 है, तो सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, 1/6, दिस इज 1/6 इज द आंसर। नाउ सी द 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि when 2 balls are drawn simultaneously, ये भी क्वेश्चन बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है कि 2 balls are drawn simultaneously containing 5 white and 7 black balls, what is the probability? 5 white and 7 black, देखो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ ब्लैक कितने हैं, ब्लैक बॉल इक्वल 7, ये बॉल्स हैं 5, ठीक है, ये ऐसे कह रहा है, नंबर ऑफ 5 white and 7 black balls, what is the probability 2 balls are drawn simultaneously, एक साथ 2 बॉल निकाले जा रहे हैं, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट, one ball is white and other one is black, ठीक है, तो see the total number of balls is how much,
टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 5 + 7 दैट इज इक्वल टू 12. ठीक है. Out of 12, 2 ball is to be drawn, and if those 2 balls are white, क्योंकि कह रहा है ना कोई both are white, तो अगर दोनों white हैं तो 5 में से 2, 5 white है, 5 में से 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. वैसे कितने में से आउट ऑफ 12 2 को सेलेक्ट कर. So this is the probability if both are white. Both are white. ठीक है. ये ऐसे आएगा. 5 में से 2 को सेलेक्ट किया, फिर 12 में से 2 को सेलेक्ट किया, डिवाइड किया, पूरे में से फ्रैक्शन से डिवाइड कर देते हैं. तो 5c2 डिवाइडेड बाई 12c2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. नाउ कैलकुलेट दिस. देखो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये तो 5c2 का हो गया भाई. इसमें से माइनस करते हैं ना, NCR इक्वल फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल माइनस r. वैसे ही 12c2 का जब करेंगे तो फैक्टोरियल 12 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 2 कितना है ये. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो. अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल, ये इतना मल्टीप्लाई आएगा. अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट होगा. ठीक है. और यहाँ जो 12 है, 12 इंटू 11 कर दो, उसके बाद 10 कैंसिल हो जाएगा. और 5 को कितना लिखे, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 जो कि इससे कट जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 10 यहाँ रहने दे रहे हैं. और नीचे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल. तो 10 से ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा. ठीक है. अब आपके पास बचा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, ये दो पार्ट बचे. ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, 4 3 जा 12, आंसर इज 5/30, 11 3 जा, तो 5/33 इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है. दिस इज आंसर 5/33, क्योंकि देखो यहाँ से 4 3 जा 12, 11 3 जा 33, so this is answer 5/33 is the answer if both the balls are what, white. सेकेंड केस में कह रहा है कि one ball is white and other ball is black. देखो प्रोबेबिलिटी सेकेंड में, one ball is black and other one is white. ये क्वेश्चन क्या है, मतलब एक व्हाइट हो एंड, और एंड देखना, एंड लगा हुआ है, एंड एक ब्लैक हो. तो टोटल 5 है, व्हाइट 5 में से एक कितना लिया, व्हाइट, एंड 7 में से एक ब्लैक कंसीडर कर लिया. टोटल जो है 12 में से 2 को कंसीडर. ठीक. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. डिवाइड कर दिया, टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, 5c1. भाई तीन चीज की वैल्यू याद रखो, NCN, NC1, NC0. ठीक है. ये डायरेक्ट लिखते हैं. तो 5c1 की वैल्यू कितना होगा, 5c1 की वैल्यू कितना होगा, क्या, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5c1, नो वन.
यस 5। तो फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू 5 हो गया, ऐसे इसकी वैल्यू 7 हो गई। और अभी अभी जस्ट 12c2 की वैल्यू आपने कितना कंसिडर, 12c2 की वैल्यू कंसीडर करके बताओ फटाफट। 12c2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, आप कैलकुलेट करके बताएं व्हाट इज वैल्यू ऑफ 12c2। ठीक है, 12c2 की वैल्यू बताओ फटाफट। 12c2 इक्वल फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल कितना 10, ऐसे। अब ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 10। यहाँ से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 11 जा 66, तो 66 है ना। तो ये सीधे लिख दो यहाँ पे 66। अब ये 7 5 या 33, कोई 35 कोई कटे उठेगा नहीं, तो यहाँ से 35 डिवाइडेड बाई 66। अब ये कटना नहीं है किसी से, so that is the 35 on 60 is the probability if one ball is black or one ball is and one ball is white. क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है 22, देखो कह रहा है इफ टू लेटर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वोवेल। ए बी सी डी अप टू एक्स वाई, ये कह रहा है। ए से जेड तक के लेटर हैं, टोटल कितने लेटर्स होंगे, टोटल अल्फाबेट टोटल लेटर्स कितने हो गए 26, है ना, टोटल 26 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि टू लेटर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वोवेल। तो वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स कितने हैं 5। अब अगर टू लेटर्स को चूज कर रहे हैं और अगर दोनों वोवेल्स हैं, इन्हीं में से आएंगे ना, तो सिलेक्शन कितना होगा 5c2, ठीक तो होगा। और वैसे टोटल में सिलेक्शन कितने में से कर रहे हैं 26 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्या वोवेल। ठीक है, जस्ट डू इट कैलकुलेशन। अगर इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 24, 26 माइनस 2 फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 24, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों डिवाइड करके नीचे चले जाएंगे। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 26। अब 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 5 को फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 कर दो इंटू 3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपको कितना बनना है, अगर अगला स्टेप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। यहाँ से ये कट जाए, ठीक है। और ये 3 से 3 कट गया, बाकी 5 से देखो 5 5 जा 25, ठीक है। और 2 2 जा 4, 2 13 जा 26, 13 5 जा 65। तो आपको बचा 2/65, 2/65 इज द, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होगी इफ बोथ द वॉवेल्स आर बोथ आर द वॉवेल, ठीक है।
एक और क्वेश्चन इसमें आगे है, क्वेश्चन नंबर 23। सीधे क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 4 कीज when 4 cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 4 कीज when 4 cards are drawn at random। तो टोटल if you have seen the number of cards, the number of playing cards equal to how much? 52, सबको पता है। एंड देयर आर 4 सूट, इन ईच सूट देयर इज वन किंग, वन क्वीन, वन जैक, वन एस एंड 9 नंबर कार्ड। तो इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्वीन, राइट, यू डबल की है, नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे? 4, और 4 में से ये 4 ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन कितना हो गया? 4C4 का। 4 क्वीन में से 4 क्वीन को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वैसे सिलेक्शन कितने में से हुआ? टोटल की अगर बात करें तो 52 में से 4 का सिलेक्शन हुआ है। तो 52 में 54 का सिलेक्शन करके और डिवाइड कर दोगे, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगे 4 की। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4C4? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4C4? 4 आएगा। 4C4 की वैल्यू कितना होगा? 1। यस, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 डिवाइडेड बाय और 52C4 की वैल्यू बताओ। 52C4 की वैल्यू बताओ फटाफट, कितना होगा? कैलकुलेट करो 52C4 की वैल्यू। 52C4 की वैल्यू, ठीक है। अगर 52C4 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 52 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 52 में से 52 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। अब यहाँ से 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 यहाँ पे लाके छोड़ देना, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 48 ये रह जाएगा, ठीक है, ये रह जाएगा इतना। अब जब इसके बाद से क्या करोगे? फैक्टोरियल 48 से इसको कैंसिल कर देंगे। हाँ, 270725 इसने रिप्लाई किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरा सिंप्लीफाई फाइनली सिंप्लीफाई करके बता रहे इसका 20275। अच्छा, यही है ना 20 कितना है? फिर से एक बार फिर बोलो। 27025 2700725 दिस इज द, ठीक है ना। तो ये बस इसका सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आ जाएगा, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35, देखो कह रहा अ बैग कंटेन्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल, व्हाइट बॉल 5 एंड 4 ब्लैक। तो पहले देखो नंबर ऑफ व्हाइट, ये आपके पास 5 है, नंबर ऑफ ब्लैक, ठीक है, व्हाइट 5 है और ब्लैक 4 है, और
कंटेन 6 रेड 5 वाइट एंड नंबर ऑफ रेड जो है वो 6 है। तो वैसे ही टोटल कितने हो गए? 15। ठीक हो गया ना भाई? ऐसे देखो 5 + 4 + इक्वल, तो 15, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बॉल। पर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में आपसे कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज रेड। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन अ बैग 2 balls आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज रेड। तो अगर रेड नहीं होंगे, या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, या ब्लैक और व्हाइट दोनों हो सकते हैं। यही तो कंडीशन है ना। देखो, या तो अगर रेड नहीं होगा दोनों, या तो ब्लैक होंगे या तो व्हाइट होंगे, या दोनों, एक ब्लैक और एक व्हाइट होगा। लेकिन अगर रेड नहीं है तो बाकी कितने बचे? रेड नहीं है तो ये 4 और 5, 9 होंगे। इन्हीं 9 में से किसी दो को सेलेक्ट करना है। देखो, अगर ये रेड माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, केवल यही 4 और 5 बचेंगे। इन्हीं में से कोई दो बॉल होंगे, चाहे वो रेड हो, व्हाइट हो, चाहे जो भी हो, या रेड व्हाइट हो, या रेड सिंपली रेड हो, या सिंपली व्हाइट हो। ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी बन रही है कि इन्हीं में से 2 रेड बॉल होंगे। तो फेवरेबल हो गया 9 में से। वैसे टोटल कितने में से सेलेक्ट करना है? 15 C2। 15 में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। ठीक है, नॉट रेड। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं बोथ आर नॉट रेड, बोथ आर नॉट रेड। Now calculate 9 C2 or divide by 15 C2 and tell the answer. 9 C2 and divide by 15 C2. जल्दी करो। 9 C2 divide by 15 C2. 12 by 35. Okay. So 12 by 35 is the, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, टाइम भी ओवर हो चुका है। तो हमने आपको 35 तक का इसलिए खींच करके क्वेश्चन ले गए हैं। बाकी क्वेश्चन आप बीच में, आपके होमवर्क हैं, आप क्वेश्चन को करिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज को। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम 33 35 के जो भी 35 के आगे के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि इधर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला सेशन में मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम अटेंडेंस रहे। बहुत कम अटेंडेंस आप लोगों की आ रही है। आप जो भी आज प्रेजेंट हो यहाँ पे, नियर अबाउट 5 ओनली 5-6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। आप आपस में थोड़ा सा भी अगर कन्विंस करेंगे तो बच्चे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।